दोस्तों वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच पर और फेसबुक पे मंच पर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में, आने वाले दिनों में जो रूस का हमला है वो यूक्रेन पर किस तरह का होने वाला है और किस तरह का हमला हो सकता है। ठीक है, तो उस पर मैं थोड़ा बातचीत आप लोगों के साथ करूँगा। तो इस पर मैंने एक नोट्स बना लिया है मेरे ब्लॉग के पेज में। तो मैंने नोट्स यहाँ पे आप लोग को दिखा रखा है। तो इस नोट्स को आप लोग लिख भी सकते हैं या फिर रख भी सकते हैं, जानकारी लेकर रख सकते हैं। तो ये जो ब्लॉग है ये इंग्लिश में है और हिंदी दोनों में ही है। तो पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर मैं आप लोग को हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है कि क्या हो सकता है, तो किस तरह का हमला हो सकता है यूक्रेन के ऊपर आने वाले दिनों में। ठीक है, इस पर एक छोटा सा डिस्कशन आज हम करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है। इंग्लिश में पहले बोल देते हैं। इन द अपकमिंग डेज यूक्रेन इज लाइकली टू फेस कंटिन्यूड एंड पोटेंशियली इंटेंसिफाइड सीरीज ऑफ अटैक फ्रॉम रशिया। हियर्स ए ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट। कंटिन्यूड एरियल अटैक, तो पहला क्या है, कंटिन्यू एरियल अटैक्स होगा। रशिया हैज़ बीन कंसिस्टेंटली यूजिंग ड्रोन्स एंड मिसाइल्स to target Ukrainian cities and infrastructure. This pattern is expected to continue, with reports suggesting that Russia is launching more drones than ever before. These attacks aim to terrorize the civilians and degrade Ukraine's energy and logistic capabilities and deplete its air defense resources. Persistent frontline pressure. ठीक है, Russian forces are maintaining pressure along 1000 km front line, especially in the eastern Donetsk region around Pokrovsk, and potentially in the other areas like Kopyansk and Kostoyan-Kebis. And Kostoyan-Kebis, while significant territorial breakthrough by Russia are deemed unlikely by analysts in the short term, they will continue to probe and attempt to make incremental gains, trying to wear down Ukrainian defenses. Emphasize attrition. The war has largely become prolonged war of attrition. Russia aims to outlast Ukraine and its allies by inflicting continuous damage and exhausting resources. Therefore, the attacks, while perhaps not always resulting in rapid territorial gains, will be designed to maintain a high level pressure and drain Ukraine's manpower and material. Strategic importance of air defense. Ukraine's ability to defend against these aerial attacks will be crucial. Recent announcements of more Patriot missile system and other air defense aid from the US, European allies are vital, but deploying integrating them effectively takes time. Ukraine needs more air defense system to cover its vast territory. Potential for escalation. While peace talks are being discussed, the Kremlin's stated goal remains achieving its objectives in Ukraine. If diplomatic efforts falter, or if Russia perceives window of opportunity due to delay in Western aid, the intensity of attack could escalate. Impact of Western aid. The speed and scale of Western military aid, particularly in terms of advanced weaponry and ammunition, will significantly influence Ukraine's ability to withstand and counter Russian attacks. Delay in aid could empower Russia to intensify its offensive. In summary, Ukraine will continue to face a powerful sustained onslaught characterized by the aerial bombardments and persisting ground assault aimed at attrition
The strength of these attacks will be heavily influenced by Russia's strategic objective, its available resources, and the level of international support Ukraine receives. तो हिंदी में इसका क्या होगा, अनुवाद बताए थे। आगामी दिनों में यूक्रेन को रूस की ओर से लगातार और संभावित रूप से तेज़ हमलों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ क्या उम्मीद की जा सकती है, इसके विवरण दिया गया है। लगातार हवाई हमले होंगे। रूस यूक्रेन शहरों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए लगातार ड्रोन और मिसाइल का उपयोग कर रहा है। इस पैटर्न के जारी रहने की उम्मीद है। रिपोर्टों से पता चलता है कि रूस पहले से कहीं अधिक ड्रोन लॉन्च कर रहा है। इन हमलों का उद्देश्य नागरिकों को आतंकित करना, यूक्रेन की ऊर्जा और रसद क्षमताओं को कम करना और उसकी हवाई रक्षा संसाधनों को ख़त्म करना है। मोर्चा पर लगातार दबाव। रूसी सेना 1000 किलोमीटर लंबी अग्रिम पंक्ति पर दबाव बनाए हुए है, खासकर पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में, और संभावित रूप से कुपियांस्क और कैस्ट्रोनिटिनिका जैसे अन्य क्षेत्रों में, जबकि विश्लेषकों द्वारा अल्पक्लिक में रूस द्वारा महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सफलताओं को असंभव माना जाता है। वे जांच करना और धीरे धीरे लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना जारी रखेंगे, यूक्रेन की रक्षा को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगे। थकान पर जोर। युद्ध में बड़े पैमाने पर एक लंबा थकान युद्ध बन गया है। रूस लगातार नुकसान पहुंचाकर और संसाधनों को समाप्त करके यूक्रेन और उसके सहयोगियों को पछाड़ना चाहता है। इसलिए हमले हालांकि हमेशा तेज़ी से क्षेत्रीय लाभ नहीं होंगे, उच्च स्तर का दबाव बनाए रखने और यूक्रेन की जनशक्ति और सामग्री को ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। वायु रक्षा का रणनीतिक महत्व। इन हवाई हमलों से बचाव करने के लिए यूक्रेन की क्षमता महत्वपूर्ण होगी। अमेरिका और यूरोप सहयोगियों से अधिक पैट्रियोटिक मिसाइल सिस्टम और अन्य हवाई रक्षा सहायता हालिया घोषणाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें प्रभावी ढंग से तैनात करने और एकीकृत करने समय लगता है। यूक्रेन को अपना विशाल क्षेत्र को कवर करने के लिए अधिक हवाई रक्षा प्रणालियों की आवश्यकता है। बढ़ोतरी की संभावनाएं। जबकि शांति वार्ता पर चर्चा हो रही है, क्रेमलिन का घोषित लक्ष्य यूक्रेन में अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। यदि राजनयिक प्रयास विफल होते हैं, यदि रूस को अवसर की खिड़की मिलती है, उदाहरण के लिए पश्चिमी सहायता में देरी के कारण, तो हमलों की तीव्रता बढ़ सकती है। पश्चिमी सहायता का प्रभाव। पश्चिमी सैन्य सहायता की गति और पैमाने, विशेष रूप से उन्नत हथियार, गोला बारूद के संदर्भ में रूसी हमलों का सामना करने और उनका मुकाबला करने की यूक्रेन की क्षमता महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। सहायता में देरी से रूस को अपने आक्रमण को तेज करने की शक्ति मिल सकती है। संक्षेप में, यूक्रेन की हवाई बमबारी और निरंतर ज़मीनी हमलों की विशेषता वाले एक शक्तिशाली और निरंतर हमले का सामना करना जारी रहेगा, जिसका उद्देश्य थकान है। इन हमलों की ताकत रूस के रणनीतिक उद्देश्यों, उसके उपलब्ध संसाधनों और यूक्रेन को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के स्तर से बहुत प्रभावित होगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि रूस क्या करना चाहता है? थकाना चाहता है। ठीक है, रूस थकाना चाहता है यूक्रेन को हमला कर करके, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो भी थक जाएंगे और थकाना चाहता है। ये एक तरह का स्ट्रेटेजी है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके दुश्मन थक जाएंगे
और लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और फिर आप उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का स्ट्रेटेजी रूस यूज़ कर रहा है। थैंक यू।